आप जब यूथ होते हैं तो बड़े फास्ट होते हैं, चाहते हैं कम से कम समय में बहुत कुछ हासिल करना। वक्त के साथ आपको पता चलता है कि आपको धैर्य रखना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। जिस दिशा में आप जाना चाहते हो उस दिशा में आप अग्रसर रहे, काम करते रहे और सफलता आती है। मेरा नाम अनमोल माटा है, मैं अटपटा से हूँ और आज हमारे साथ एक एंटरप्रेन्योर मिस्टर आलोक कुमार जी जो इंडक्टस ग्रुप के आर्किटेक्ट और फाउंडर हैं। सो ये पॉडकास्ट जो है बहुत ज़्यादा बिजनेस साइड और स्टार्टअप्स की साइड जाने वाला है। क्रिस्पी भी होगा, आप बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। थैंक यू। हाउ डिड यू स्टार्टेड योर करियर? हाउ डिड यू स्टार्टेड दिस इंडक्टस? I started my career during the 90s. So 1991 I started. So after my studies I joined Johnson & Johnson, the American healthcare multinational. So there I worked for say around 13 years with Nice. Johnson & Johnson. I joined as a trainee, then rose up to various positions. And obviously this entrepreneurship idea was always in mind. But by being from a middle class family, many a times it is very difficult for you to take the call for entrepreneurship because you have many responsibilities Right. over your and family also expect you to perform Right. by taking the responsibilities. So I worked, I gained experience as well as I also earned some little money so that can be supported for my endeavor. So that is how this journey started. So in the year 2007 I left my job, I'm in Johnson & Johnson, and founded Inductus in 2007. So it was a very humble beginning with a handful of capital because whatever I could have saved during my journey, during my association, during my job. So with that we started, and being from first generation and first person from the family to take up entrepreneurship. Obviously it is not as that easy, one can understand. Right. Because everybody has expectation, you have a family to take care of, and entrepreneurship always has some amount of uncertainty, Right. Right. Risks and all. risk and all. So that uncertainty was always there. So I remember my father asking me, if you fail, what will you do? And when I shared this idea with him, he blessed me, he supported my idea. That was a greatness of him. So have you ever thought of, I said, see, I'm working into the private sector and working with a very good organization. I may not get the same kind of job opportunity if I fail, but one thing I'm sure of, that I will get an opportunity. Right. So that's how we supported, and I said, then go ahead. If you are convinced, then I have nothing to say. आपने आई थिंक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स। अब्बा नहीं मानेंगे। सबसे अच्छी चीज यही है कि यहाँ पे अब्बा मान गए थे। हाँ, अब्बा मान गए थे, and obviously he had certain riders that he had given me 2 years time. So within that, either you have to perform or you have to, get back to the job, whatever you are in. Perfect. So yes, with that idea we started in the year 2007. In the month of August we incepted this company, and that is how the journey started. तो कंपनी का नाम इंडक्टस आपने कहाँ से सोचा? और बहुत यूनिक नाम है इंडक्टस। Actually, this we took from the induction. In physics, all of us must have read about induction. So from induction we have taken, so we transmit energy, and that is how this name came, and from there we took this name. परफेक्ट। सो यूजुअली जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, सो बहुत सारे लोगों को आइडियाज नहीं होते कैसे स्टार्ट करना है। आपने देखा शार्क टैंक एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा प्लेटफॉर्म आज एंटरप्रेन्योर्स के लिए बना हुआ है। शार्क टैंक आपने आई थिंक देखा भी होगा। हाँ, बिल्कुल। सो वहाँ पे लोग फंड रेज वगैरह करते हैं। सो आपने कभी फंड रेज किया या फिर आपको लगा कि आपने कैसे स्टार्ट किया? फंड रेज तो नहीं किया और कर भी नहीं पाए हम लोग। इसकी रीज़न है कि फंड जो है नॉर्मली आजकल टेक रिलेटेड एंटरप्राइज हैं आज के दिन में, उसके अंदर फंडिंग ज़्यादा अवेलेबल है। बट येस, वी वर सपोर्टेड बाय बैंक्स, एंड आवर बैंकर इज, सो दे हैव सपोर्टेड अस, and that is how we could grow. And of course we had a great team since beginning itself. टीम वर्क इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, आई थिंक True. सो। अकेले तो कभी कहीं जा ही नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अकेले आप कितना कर सकते हैं? एवरीबडी हैज द लिमिटेशन। राइट। सो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट बिजनेस अवेयरनेस इन इंडिया? आजकल आई थिंक हर बंदे को जॉब छोड़ के बिजनेस ही करना है। सो आपके हिसाब से इंडिया में कितने बंदों को अवेयरनेस है? आई थिंक देखो, पिछले 10 साल में चीज़ें बदली हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहले व्हेन वी स्टार्टेड उस समय सिनेरियो डिफरेंट थे। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिनके जो सो कॉल्ड मनीड क्लास, जिनके पास पैसे हो, जिनके फादर या पेरेंट्स या फोर फादर्स बिजनेस में हो।
सो वो लोग ज़्यादा थे उसके अंदर। पर पिछले 10 सालों के अंदर मैंने देखा है इसके अंदर माइंडसेट में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। एंड मिडिल क्लास हैज़ ऑल्सो दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग इन, एंड थैंक्स टू दी IT boom in India. So that has also given a path or paved path to many such youngsters, those who have taken entrepreneurship. Though they need to be very careful while they are starting any entrepreneurship, because I personally feel that you need to have little bit of experience prior to that if you are willing to start, and of course some capital also, little bit of capital also. Why? Because see, sustainability is a big factor. Right. You can't plan that you are going to be successful, say, in a month or 2 or 6 months or a year. The path is very uncertain, and there are many factors which basically affects it. I think business is all about risks. Right. So many external factors, internal factors, your luck, your surrounding, your team members, the kind of product you are into in, the kind of industry you are in. So all that contributes to the success of. So many things are beyond your control many a times. Right. But yes, I believe certain things are under your control, and if you can work it well, prepare well, why not? Anyone can be successful. I think first of all आपने बिजनेस जब स्टार्ट किया होगा, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने जब कंपनी स्टार्ट करी थी, अपनी पहली कंपनी, सो मेरे हिसाब से सब मेरे दिमाग में था। क्या आपके भी सब दिमाग में था? आपने मतलब राइटिंग्स लिखी थी और आई थिंक आपने बुक्स रेडी करी उसके रिगार्डिंग कैसे आपको स्टार्ट करना है? नहीं, स्टार्ट करना इट इज़ मोर ऑफ ए पैशन। तो जब आप पैशन में काम करते हैं तो कई दफ़ा सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस टेक्स अ बैक सीट। व्हेन वी स्टार्टेड, ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट इन टाइम registering a private limited company, you also used to be a big affair. I'm Right. talking about 2007. Right. So that also used to take 3-4 months of time. So yes, we started. We formed a firm, and then we applied for private limited. Formation of a private limited company. I can't say that everything was planned. That much I can tell you. Okay. Right. You Right. need to take one step at one time. Right. So you take one step, you go one step forward, and many a times you see multiple opportunity and many other. There your maturity, your work experience, right, that comes into play. Correct. Right. And then accordingly you take a call. Right. मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैंने देखा कि बहुत सारी कंपनीज सेटअप होती हैं इंडिया में, बंद हो जाती हैं, बट मैंने जब आपका पोर्टफोलियो सर्च किया, वी इंडक्टर्स इज मैनेजिंग मल्टीपल ऑफ सब्सिडरीज हैं जो बहुत सारी कंपनीज आप मैनेज कर रहे हो, सो हाउ यू मैनेजिंग दैट एक टाइम पे इतनी सारी कंपनीज? काफ़ी चैलेंजिंग है, ये इतना आसान नहीं है, बट फॉर्चुनेटली वी हैव गॉट ए ग्रेट टीम इन प्लेस, एंड द क्रेडिट गोज टू माई टीम अनडाउटेडली। ऑब्वियसली बीइंग अ लीडर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमें लीड करना पड़ता है, मेनी अ टाइम्स हमें गाइड भी करना पड़ता है अपनी टीम को, बट टीम है और इट इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क। इफ़ यू हैव अ ग्रेट टीम यू कैन डू एनीथिंग इन दिस। राइट, परफेक्ट। आज के टाइम पे लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं, उनको बाकी कुछ नहीं दिख रहा अपने अलावा। मैंने देखा कि यू वर्किंग विद द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR एज वेल, एवरीथिंग इज़ लाइक परफेक्ट। सो आप कैसे मैनेज कर रहे हो ये सब? आपके माइंड में कैसे आया कि मुझे बिजनेस के साथ साथ भी एक स्टेप नेशन के लिए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए भी आपको देना चाहिए? देखिए, आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ सोसाइटी। व्हाट आई फील, हमें जो समझ में आता है, इट इज़ ऑल अबाउट सोसाइटी, इट इज़ ऑल गिवन बाय सोसाइटी। जिस एडुकेशन की बदौलत आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं, राइट, तो ये एडुकेशन भी किसने दिया? ये हमारी सोसाइटी ने दिया। हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स, वो हमारे सोसाइटी के पार्ट हैं। हमारे स्कूल, हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, हमारे जो सीनियर्स हुए जिन्होंने हमें प्रोफेशनलिज्म सिखाया, प्रोफेशनल एटिकेट्स, मैनरिज्म, तौर तरीके सिखाए, सो दैट ऑल हैज़ कम फ्रॉम सोसाइटी। So obviously you owe to the society, right, and you must pay it back, right? Definitely. So this is what personally I feel, that we owe our success to. That is one of our credo also. Value system. We have a credo value system at Inductors, and wherein we say that we owe our success to society and we must pay them back. So that is Perfect. where it is. When COVID-19 occurred, सो आई नो दैट बहुत सारी कंपनीज को इश्यूज हुए, बहुत सारे लोगों की जॉब गई। स्टिल एट दैट टाइम ऑल्सो आपने एक मिशन 100 स्टार्ट किया। सो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट? कोविड वाज, आई कैन टेल यू, completely unexpected,
अनइमेजिन्ड। हम लोग किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी एक सिनेरियो क्रिएट होगा, एंड वी वर कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड। हम लोग कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड थे टू डील विद कोविड। सो व्हेन इट केम, ऑब्वियसली देयर वर लॉसेस, तो लॉसेस ऑन मेनी काउंट्स, I mean on professional front, personal front, every family I believe must have lost someone or other, right during the COVID. So accordingly many of my colleagues, many of my known, मैंने देखा कि they also lost their job, and obviously there were a pressure because opportunities उस समय बहुत कम थी right. because of COVID. Obviously layoff का बहुत सारी कंपनियों में layoff चल रहे थे, बहुत जगह पे कॉस्ट कटिंग चल रही थी, right. और हम इसको गलत भी नहीं मानते हैं, ये गलत भी नहीं है, बिकॉज कंपनी सरवाइव करेगी तभी तो फर्दर फ्यूचर में भी वो कुछ और कर सकती है, right. और फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। बट दैट वाज द सिनेरियो, वो एक बड़ा यूनिक सिनेरियो था। वंस द लॉकडाउन वाज ओवर, जब लॉकडाउन ओवर हुआ एंड वी केम बैक टू ऑफिस, देन वी वर सिटिंग। ऑब्वियसली उस समय हमारे पास भी करने को बहुत काम नहीं था, बिकॉज वी आर मोस्टली वर्किंग इनटू द गवर्नमेंट सेक्टर, and government sector at that point in time, many of the activity in other sector apart from health that were not functioning because of many reasons, because of the COVID infection and all those things. So we thought how to contribute, I mean as an organization what we can do, right, to combat this pandemic, right. So that was the kind of discussion we had in the office, and then the idea came, can we generate some employment during this? That could be probably the best way how a company can contribute to one's life. Right. And then how this idea of Mission 100 came. We contacted our client and we wanted to start some of the project, and that is how this hiring started. Okay. So we took a target of creating 100 employment during the 3 months of time, if I am correct. So next 3 months of time we wanted to create 100 employment, 100 jobs. Lekin eventually when we started, that's how it happens. If you believe in Almighty, you start something good and things start falling in place. Right. And let me tell you, 3 महीने के समय में during the COVID, हम लोगों ने 300, कुछ लोगों को 300 से ज़्यादा 320 और 330 इतने लोगों को हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट उस समय देने में हम समर्थ हुए। 100 से स्टार्ट किया था, 100 की प्लानिंग थी, और 320 इफ आई एम करेक्ट, करीब 320 लोगों को हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया एंड वी एम्प्लॉयड देम। सो दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इफ यू से एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड वेरी सेटिस्फाइंग। आज भी आप बात करते हैं, सोचते हैं तो उस दौर के बारे में तो बड़ा सुकून मिलता है कि हमारी जो भी कैपेसिटी थी उसके हिसाब से हम लोगों ने थोड़ा बहुत ही एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम लोग कर पाए। आई थिंक ये छोटा सा तो नहीं है, बट अगर किसी कंपनी के लिए कोविड के टाइम पे सर्वाइव करना मुश्किल था, आपने 300 लोगों को जॉब दी, तो आई थिंक इट वाज नॉट दैट स्मॉल। That's how it happened, and we must give credit to the Almighty who supported us in leading this endeavor. Perfect. So sir, आपने बताया कि एक अचीवमेंट तो आपने जो अनलॉक किया कोविड के टाइम पे, बट आपकी मास्टर अचीवमेंट क्या थी? मतलब एक पॉइंट जो पीक पॉइंट अचीवमेंट थी आपकी कि हाँ दिस इज व्हाट आई डिड एंड मेरा ये मेन टास्क था करना। अगर मास्टर अचीवमेंट भी की बात करें तो सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप टेकअप करना, बिकॉज आई स्ट्रगल्ड फॉर से अराउंड 13 years, राइट। आई मीन स्ट्रगल्ड, आई मीन टू से कि सपना था, दैट वाज अ ड्रीम, एक सपना था कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पाथ पे जाएं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो वो 13 साल का एक फासला था जब हमने जॉब किया, काम करके, बिकॉज पैसे इकट्ठे करने थे, अनुभव लेने थे, तो अनुभव और पैसों के लिए तो काम करना पड़ा, राइट। सो एक वो सो दैट आई रेट एज अ मास्टर अचीवमेंट एज यू हैव आस्क्ड, सो दैट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग काइंड ऑफ अचीवमेंट। दूसरा अचीवमेंट था व्हेन वी स्टार्टेड दिस बिजनेस, वी ऑलवेज वांटेड टू बी इनटू द गवर्नमेंट सेक्टर, okay, right. So and for getting into government sector आपके पास बहुत सारे कायदे कानून हैं कि आप अगर गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे तो कंपनी इतनी पुरानी होनी चाहिए, मिनिमम 3 साल पुरानी होनी चाहिए, 3 साल के ऑडिटेड बैलेंस शीट होना चाहिए कंपनी के पास, एक साइजेबल टर्नओवर होना चाहिए कंपनी के पास। सो
दैट वी अचीव, दो वी कुड नॉट अचीव इन 3 years टाइम, एंड वो भी मैं बता दूं आपको कि इट वाज नॉट दैट इजी टू अचीव आल्सो एट दैट पॉइंट इन टाइम. आई एम टॉकिंग अबाउट 2007. But it took around 5 years time from our inception to 5 साल लगे मुझे, and we entered into government sector. And prior to that we were working with the UN organization also. Okay. We also contributed into the Pulse Polio program, Nice. though in a very small way, but yes, we were a part of it. Implementation we also played a bit into it. So that is how we entered into the government, and that was very satisfying because a dream come true. एक स्वप्न Right. आपका जो पूरा होता है उस तरीके की चीज़ थी, and that is what I say. नाइस. मैंने देखा है कि आपने मल्टीपल ऑफ अवार्ड्स अचीव करे हैं. हाँ हाँ. सो कौन कौन से कैसे कैसे आपको मिले, किस बेसिस पे? I mean अवार्ड तो ज़्यादातर बिजनेस के बेसिस पे मिले, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ बेहतर करने के लिए मिले. जैसे एक अवार्ड हम लोगों को मिला दैनिक जागरण पब्लिकेशन के तरफ से, डीबी ग्रुप. ओके. सो दे हैव गिवन अस एक अवार्ड. अभी एसोचैम के तरफ से भी एक अवार्ड मिला हम लोगों को, और भी कुछ अवार्ड से. तो राइट. तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आपको एक ऐसा कोई अवार्ड मिला हो? आई मीन बहुत सारे वर्क ऑर्डर्स मिले, उसी को हम लोग अवार्ड समझते हैं. That's definitely yes. Right. That Right, itself is an award Right. and recognition of our our contribution. Right. Right. Nice. So मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी टीचिंग क्या थी? आई मीन टीचिंग तो यही है, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक तो धैर्य. आप जब यूथ होते हैं तो बड़े फास्ट होते हैं, बड़े आप चाहते हैं कम से कम समय में बहुत कुछ हासिल करना. वक्त के साथ आपको पता चलता है कि आपको धैर्य रखना चाहिए, काम करते रहना चाहिए. एक किसी भी दिशा में, जिस दिशा में आप जाना चाहते हो उस दिशा में आप अग्रसर रहे, काम करते रहे, और सफलता आती है. नहीं, हाँ देर बिल्कुल. या सवेर सफलता आती है. सो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है मेरे लाइफ की, जो मैंने सीखा है काफ़ी साल काम करके. और हमारे जो यूथ हैं, जो कल के हमारे फ्यूचर जनरेशन है, जो एंटरप्रेन्योर होने जा रहे हैं, जो इस चीज़ को लेके आगे जाने वाले हैं, उनको भी कहेंगे कि धैर्य रखें, और धैर्य से सब कुछ आता है. ठीक है. और यूजुअली लोग वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते. सो आज के टाइम पे आपने वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन किया हुआ है? देखिए मेरे हिसाब से इफ़ यू आर टेकिंग एंटरप्रेन्योरशिप, तो वर्क लाइफ बैलेंस की जहाँ तक बात है वो बहुत डिफ़िकल्ट है. अगर कोई कहे कि बड़ा आसान है वर्क लाइफ बैलेंस करना, नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल आसान नहीं है. इट्स अ डिफ़िकल्ट पाथ. और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप को अपना हॉबी, पैशन, लाइवलीहुड बनाना चाहते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब होगा, ये आप समझ के रहें. बिकॉज देर इज़ नो संडे, देर आर नो संडेज, नो मंडेज. एवरी डे you are supposed to work. You may get a call at 11 o'clock in the night, 12 o'clock in the night, 6 a.m. in the morning, and you have to attend all your calls. Right. There is no Right. run away. No run away. But yes, sometimes if you have a great team, sometimes you can take off maybe a day, 2, 3, and you can go on a holiday trip. Weekends. Right? Weekends. That is how the balance can be achieved. आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके फादर क्या करते थे, आप कहाँ से थे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जी. और उसके बाद आपने क्या चेंज किया, जो पहले था अब क्या है? बॉर्न एंड ब्रॉटअप मेरा बिहार का है. पटना में जन्म हुआ, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई, स्कूल कॉलेज पटना से ही किया. एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो हम लोग 4 भाई बहन हैं, और हमारे फादर जॉब में थे पटना में. सो ही वॉज ऑल्सो वर्किंग इन टू प्राइवेट सेक्टर. सो काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी, आप समझ सकते हैं. Right. 4 भाई बहन. एंड और एक बात बड़ा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे बताना कि मेरे फादर फर्स्ट जनरेशन थे अपने घर में जिन्होंने गांव छोड़ के जो शहर आए थे. उनके पहले जैसे मेरे दादाजी, वो लोग गांव में ही रहे. गांव में ही, जो मेरा गांव है सोनपुर, बिहार में एक जगह है जहाँ का सोनपुर मेला बड़ा फेमस है, वो लोग गांव में रहे. बट मेरे फादर ग्रेजुएशन करने के बाद वो जॉब की तलाश में पटना आए, और उन्होंने जॉब किया, पर नौकरी की पटना के अंदर. फिर हम लोगों का जन्म हुआ, हम लोग वहीं पले बढ़े. सो पापा ने एग्रीकल्चर छोड़ के, और यूजुअली आई थिंक बिहार में एग्रीकल्चर ज़्यादा है. बिल्कुल. एग्रीकल्चर छोड़ के उन्होंने ग्रेजुएशन की उस टाइम. हाँ. और उसके बाद डेफिनेटली मेन प्रेरणा तो आपके पिताजी रहे होंगे पढ़ाई. बिल्कुल. अगर वो, उन्होंने सोचिए, अगर वो
उस समय गांव छोड़ के शहर नहीं आए होते, वो भी गांव में रह गए होते और हम लोग फिर गांव में रह गए होते, तो ये जो यात्रा रही है शायद ये यात्रा नहीं होकर के कुछ और यात्रा भी हो सकती थी। तो बिल्कुल सही बात है, हमारे पिताजी बड़े अग्र सोची थे, आगे सोचते थे। तभी मैंने आपको बताया कि जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की तो उन्होंने कहा कि अगर फेल होगे तो क्या करोगे, ये सोचा है कभी? तो हमने कहा फेल होंगे तो फिर से नौकरी कर लेंगे, राइट, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कोई लिमिटेशन है नहीं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जाओ, बिल्कुल करो। तो अब जो आदमी प्रैग्मेटिक होगा, आगे का सोचेगा, वही इस तरीके का आंसर कर सकता है, राइट। तो यही यात्रा रही है हमारी। ठीक है। सो विद इन दिस जर्नी कुछ ऐसे फेजेस तो आए होंगे जहाँ आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा। आई थिंक आजकल के सब लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, आजकल के युवा बहुत, हर चीज़ में स्ट्रगल है। सो आपने क्या स्ट्रगल किया, आपने क्या चेंज किया उसके बाद? देखिए, बिना संघर्ष के सफलता कभी नहीं मिलती। अगर सफलता चाहिए तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, संघर्ष के रास्ते ही आप सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। अब रही बात संघर्ष की, तो संघर्ष तो हर कदम पे था। शुरुआती दिनों में भी संघर्ष था, आज भी संघर्ष है और शायद आने वाले वक्त में भी संघर्ष होगा। संघर्ष से तो पीछा नहीं छूटना है। क्यों नहीं छूटना है कि अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो संघर्ष के सिवा और कोई रास्ता नहीं है जिसके थ्रू ये किया जा सके। सो जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं दूंगा। सबसे पहला संघर्ष ये हुआ कि हम लोगों ने कंपनी खोली। मैंने आपको बताया कि 3-4 महीने लगते थे उन दिनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने में। तो फॉर्म हम लोगों ने एक बना करके शुरू किया उस 4 महीने के दौरान, और खुशकिस्मती से एक क्लाइंट भी आ गए हमारे जिन्होंने काम दे दिया। अब उनकी क्लाइंट आ गया, काम हो गया, वो कह रहे हैं कि भाई अपना बिल सबमिट करो, आपको पेमेंट करना है। और हमारे पास बैंक अकाउंट होता नहीं था, समझ भी नहीं थी इतनी, तो बैंक अकाउंट नहीं था। फिर हम गए एक बैंक में, तो उनसे मैंने कहा कि भाई मेरी ऐसे ऐसे फॉर्म है, और वो एक्चुअली बैंक हमारे नेक्स्ट डोर ही था, हमारे ऑफिस के पास में ही था। मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई इंट्रोड्यूसर है, कोई गारंटर है? आई मीन एक आदमी उन दिनों चाहिए होता करंट अकाउंट के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो भाई अब आप, हमारे फैमिली में दूर दूर तक किसी ने कभी कोई व्यापार तो किया नहीं था, बिजनेस तो किया नहीं था, तो क्या करें, कोई था नहीं। फिर मैं बड़ा परेशान, उनके पास 1-2 दफ़ा और गया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बिना उसके तो हम अकाउंट नहीं खोल सकते। उन दिनों के ऐसे नियम थे कि आप करंट अकाउंट खोलने के लिए आपको कोई चाहिए होता तो जो आपको बैंक को इंट्रोड्यूस करें। सो फिर फॉर्चुनेटली हमारे एक फ्रेंड थे जो साथ में स्कूल में पढ़ते थे। उस समय वो एक बैंक में काम करते थे, ही वॉज ए ब्रांच मैनेजर देन। सो मैंने यूं ही उनको कॉल किया कि यार बड़ा परेशानी हो रही है, मेरा पेमेंट आना है और हमारे पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। उन्होंने मुझे बड़ा मदद किया, वो हमारे मित्र, उन्होंने कहा आप लेटर हेड और वगैरह वगैरह 2-3 चीज़ें बताई, आप ले करके आओ। फिर हम गए और बैंक अकाउंट खोला। तो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। सो वो भी एक स्ट्रगल था उस दौरान, बिकॉज आप जब फर्स्ट जनरेशन आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, एक्सपीरियंस से आती हैं जो, राइट। और उसके बाद जो कभी बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि आप ठोकर खा के ही सीखते हो। सो कई सारी ठोकरें खाई। फिर उसके बाद कंपनी के अंदर भी ऐसा नहीं था कि हमेशा चीज़ें एक जैसी रहीं, चीज़ें कई दफ़ा बनती गईं, कई दफ़ा बिगड़ती गईं, और बिगड़ते हुए दौर में, बिगड़ते हुए वक्त में आपको सबसे ज़्यादा संयम और सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ता है। तो कई दफ़ा कई इंसिडेंट्स हुए। दूसरा सबसे बड़ा इंसिडेंट मुझे हाल फिलहाल का याद आता है, वो है कोविड। कोविड ने कहीं ना कहीं हम लोगों को अंदर से कमज़ोर कर दिया था, और कोविड से उबरना वॉज नॉट दैट ईजी, राइट। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट यस, ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने कोविड से भी मुकाबला किया, कोविड के बाद भी मुकाबला किया, और धीरे धीरे हम लोग फिर अग्रसर हैं प्रगति के पथ पर। नाइस। और कभी इस सिचुएशन में ऐसा हुआ कि स्ट्रगल टाइम में लोगों को लगता है कि क्विट कर दिया जाए, आप दिल्ली आए बिहार छोड़ के, कभी ऐसा हुआ उस टाइम में कि आपको लगा कि अब बस, अब घर चलते हैं, अब क्विट करते हैं? नहीं, वीक मोमेंट्स तो आए, इसमें कोई दो मत नहीं है। कई सारे कमज़ोर क्षण आए जब लगा कि शायद ये मेरे वश का नहीं है, शायद हम इसके लायक नहीं हैं। ये समझ में आता था कि हम इस लायक नहीं है कि इस यात्रा को जारी रख सके, मेरे अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है। फिर कई दफ़ा अपने आप को समझाया कि लगे रहो
और इसके पीछे लगे रहे। कई कमज़ोर क्षण आते हैं कि आपको जब लगता है कि आप शायद निकलना मुश्किल है यहाँ से, लेकिन एक चीज़ मैंने सीखा है पिछले 14-15 सालों की यात्रा में कि अगर आप लगे रहें तो कोई ना कोई रास्ता दिखने लगता है। आइडिया इज़ टू लगे रहो, राइट। आपको लगे रहना चाहिए। जब आप लगे रहेंगे, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहेंगे और उसके पीछे लगे रहेंगे, तो ईश्वर भी कोई ना कोई रास्ता आपको देते हैं या कोई ना कोई रास्ता आपको दिखने भी लगता है। राइट। और रही बात के पटना से दिल्ली आने का, तो मुझे लगता है कि मुझे और 2-4-5 साल पहले दिल्ली आना चाहिए था। तो आई थिंक ग्रोथ कुछ और होती। हाँ बिल्कुल, शायद हम लोग 2-3 साल और पहले आ गए होते तो और बेहतर हो गए होते। एक फॉल बैक्स आपने बताया, बहुत सारे फॉल बैक्स हुए, कोई ऐसा मेजर फॉल बैक भी है आपकी लाइफ में? मतलब आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं कि कोविड आया और बिजनेस स्टार्ट करने में, बट कोई ऐसा इमोशनल फॉल बैक जो लगा हो कि मुझे आपको इमोशनली जिसने तोड़ दिया हो? डेथ ऑफ माई फादर ऑन ए पर्सनल नोट, ही वॉज एन इंस्पिरेशन टू मी। कहते कम थे, बोलते कम थे, लेकिन आप कितने भी परेशान रहो, कितने भी दुख में रहो, आप जब अपने फादर या हम जाते थे अपने पिताजी के पास, तो कोई ना कोई एक आध शब्द ऐसा कहते थे जैसे बड़ी प्रेरणा मिलती थी। जैसे एक दफ़ा जब कोविड के स्ट्रगल में हम काफ़ी परेशान थे, जूझ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो, जिस रास्ते पे चले हो इतना आसान नहीं है, और इस तरह की परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, और अगर इसी परेशानी को तुम निकल सकते हो तभी तुम बेहतर कर पाओगे। इसलिए तुमको इस परेशानी से जूझना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए और तुम निकल जाओगे। सो ये जो शब्द थे कि तुम जूझना चाहिए और तुम निकल जाओगे, ये बहुत प्रेरणा दिया मुझे उस दौरान, और मुझे दोबारा से दुगने जोश, दुगने एनर्जी के साथ काम करने का फिर से कहते हैं ना, एक प्रेरणा मिली, एक इंस्पिरेशन मिला। मैंने भी ऑफिस में आते वक्त देखा कि आपने नीम करौली बाबा की एक पिक ऑफिस में लगाई हुई है। सो आप वहाँ से कैसे कनेक्ट हुए? ऑन ए स्पिरिचुअल नोट आप कनेक्ट होते नहीं हैं। ऐसी चीज़ें, परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि खुद ब खुद वो आपको अपने पास बुलाते हैं और आप जुड़ जाते हैं। कई चीज़ों को आप शब्द नहीं दे सकते। सो मेरी जो भावनाएं हैं, खास करके गुरु महाराज को लेकर के, नीम करौली बाबा जी को लेकर के, बस उनकी कृपा है और आस्था ऐसी है कि उन्हीं से दिन की शुरुआत होती है, उन्हीं से शाम होता है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, मार्क फेसबुक के जो CEO हैं, एंड स्टीव जॉब्स, वो भी यहाँ पे पॉजिटिव ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। सो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का क्या बिलीफ है नीम करौली बाबा में, इसके लिए आप कुछ बता सकते हैं? मतलब मैंने सुना है, मैंने भी कि बाबा ने जब समाधि लिया था तो उसके जस्ट बाद, समाधि के बाद ही स्टीव जॉब्स इंडिया आए थे, और वो भी बड़े बुरे दौर से गुजर रहे थे उन दिनों। एप्पल भी बड़े बुरे दौर में था, तो आए थे। वो 1-2 दिन रुके थे कैंची धाम में, जो बाबा जी का आश्रम है नैनीताल, तो वहाँ वो रुके थे और उन्हें कुछ प्रेरणा मिली थी वहाँ से, और वो प्रेरणा लेकर के वो गए थे और फिर उन्होंने काम किया, मेहनत किया। और क्या है, एप्पल किसी को बताने की ज़रूरत तो है नहीं है। दूसरी एक कहानी जो मार्क जकरबर्ग ने खुद कहा है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी से मिले थे, तो इस कहानी को उन्होंने खुद बयान किया है अपने मुँह से कि फेसबुक बड़े बुरे दौर से गुजर रहा था और उन्हें लग रहा था कि अब फेसबुक को बचाना मुश्किल है। एक दौर ऐसा आया था फेसबुक का, तो वो उनके मेंटोर थे स्टीव जॉब्स साहब। तो वो स्टीव जॉब्स से मिलने गए और उन्होंने बताया कि भाई बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं और लगता नहीं है कि हम इस दौर को पार कर पाएंगे। तो स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा कि आप, एक आश्रम है इंडिया में और पहाड़ों के ऊपर उत्तराखंड में, आप वहाँ जाओ और जा करके आप उस आश्रम में वक्त बिताओ। मार्क जुकरबर्ग आए और 2 रात रुके थे वो वहाँ पे, और 1 रात का, लोग कहते हैं 1 रात का प्लान करके आए थे, बट ही स्टेड देयर फॉर 2 nights and 2 days, and he must have got some inspiration by Guruji. Then he went back, and now we know Facebook. What is Facebook? Right, it's now Meta, I think. Meta. Right. Then एक और कहानी है जूलिया रॉबर्ट्स की। Right. The famous actress, Hollywood actress. तो जूलिया रॉबर्ट्स, तो उस समय उन्होंने कभी एक दिन देखा, बस के अंदर किसी को देखा और शाम में एक फ़ोटो देखा, तो बोला कि इनको तो मैंने आज बस में देखा है।
किसी ने कहा कि नहीं हो ही नहीं सकता, ये तो गुरु हैं, ये तो हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। और समहाउ शी सेड कि नहीं, आई हैव सीन हिम, जो कंबल ओढ़ करके मैंने इनको देखा सड़क पे, ये बस से उतर के, ये कहानी है उनके बारे में जो मैंने सुना है। एंड फिर उसके बाद जूलिया रॉबर्ट्स ने हिंदुइज्म को अडॉप्ट किया। सो नाइस। बाहर के लोग भी यूजुअली जहाँ पे कई लोग आजकल हिंदुइज्म छोड़ देते हैं और वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, एंड यू कैन सी दैट उन्होंने कवर किया। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो और सबसे जो अच्छी बात है, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप नॉर्मली जब मंदिरों में जाते हैं तो कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग आ जाएंगे पूजा कराने, और भी चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं जो हमारे मंदिरों में हैं। बाबा जी के यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आप जाएं जैसे मर्जी वैसे जाएं, जैसे मर्जी वैसे पूजा करें, आते समय वहाँ चना प्रसाद मिलेगा, आप चना प्रसाद पाएँ और चले आए। कोई आपसे ये नहीं कहेगा ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया। मैं अभी लास्ट मंथ अगस्त में होके आया हूँ। अच्छा, तब तो आप मुझे पॉजिटिव एनर्जी डेफिनेटली फील बहुत। ये मैं यूजुअली खुद हनुमान जी में बहुत बिलीव करता हूँ। बाकी बहुत सारे लोग के एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं। आपका कोई ऐसा एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बताइए। बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं और कई दफ़ा उनको शब्द देना बड़ा कठिन होता है। कोई भी कोई ऐसा हुआ कि जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी का एक चार्ज और कुछ मतलब whenever you go through a tough time, so obviously आप उनको याद करते हैं जिनसे कहीं ना कहीं आप जुड़े हैं और आपको लगता है कि उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। सो देयर आर मेनी इंस्टेंसेस जो मुझे लगा कि उनकी आशीर्वाद मिली और फिर हम लोग आगे निकले। there are no words but yes, क्योंकि वो फीलिंग्स ही होती हैं। वो फीलिंग ही होती है, right. वो फीलिंग्स ही रहती है। सो आई वाज शेयरिंग वन स्टोरी, I wanted to share one story with you all. When I started my job in 1991, so my salary was at that point in time 1800 rupees, right? So with a salary of 1800 I started my life. I mean in 1991 I am saying. तो अब 1800 से बढ़ के 2000 हुआ, 2200 हुआ। मेरी शादी जब हुई तो हमारी सैलरी थी 3000 रुपये, राइट? 3000 थी। तो हम लोग आपस में घर में बात करते थे, क्योंकि भाई 3000 में ठीक है, एंड्स मीट हो ही जाते थे, बट तकलीफ़ें होती थी, दिक्कतें होती थी, बाइक नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी। एक बाइक होना चाहिए था तो वो भी नहीं थी। तो उस समय ये लगता था कि काश मेरी सैलरी 10,000 रुपये हो जाए। एंड लेट मी टेल यू, आई ऑलवेज यूज टू आस्क माई सेल्फ कि 10,000 रुपये सैलरी कैसे हो सकती है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये समझ में आता था कि उसके लिए दो ही चीज़ करना पड़ेगा। एक है आप काम करो, मेहनत करो, और दूसरा है नॉलेज गेन कर। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, स्किल नहीं होंगे, तो आप कैसा भी काम करो आपका आउटपुट नहीं आएगा। सो हमने नॉलेज एक्विजिशन पे काम किया, नॉलेज एक्वायर किया, बहुत सारे स्किल एक्वायर किए, बिकॉज हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते थे उतनी स्किल नहीं थी हमारे पास। तो काफ़ी सारे स्किल एक्वायर करने थे, कम्युनिकेशन पे काम करना था, नॉलेज पे काम करना था, स्किल सेट्स पे काम करने थे। सो वो किया, एंड लेट मी टेल यू, यस, दैट इज़ द ओनली वे बाय विच वन कैन ग्रो। I always suggest my teammates also, my colleagues also, keep acquiring knowledge. Right. Knowledge is the key. We are living in an information technology world, right? And this world is driven by knowledge. So knowledge is the key, and with the knowledge itself you can grow. कुछ अपने कॉलेज के बारे में बताइए कि कॉलेज में आप कैसे थे। अभी तो आप एंटरप्रेन्योर डेफिनेटली हैं, कॉलेज में कैसे आप टाइप का बिहेवियर था आपका? जो कॉलेज का एक नॉर्मल यूथ होता है वही नॉर्मल यूथ थे। पढ़ाई में थोड़ा कम, बाकी चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा, खेल कूद और बाकी की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं कॉलेज के दिनों में। सो ऑब्वियसली एक नॉर्मल यूथ वही होता है जो हर चीज़ों में, सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। तो मैं भी था। और दूसरी चीज़ के बाद में कॉलेज के दौरान थोड़े कॉलेज पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। तो कॉलेज पॉलिटिक्स में जाना मतलब एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, आपका एक क्षेत्र आपके सामने खुल जाए, एक बहुत बड़ा एरिया एक ओपन हुआ जो मैं जानता भी नहीं था। तो राजनीति में गया, राजनीति में जब कॉलेज की राजनीति में गया, उसके बाद उन दिनों कॉलेज की राजनीति भी थी, वो मतलब उसके अंदर थोड़े क्रिमिनलाइजेशन हो चुके थे।
वहाँ पे जो हमारे कुछ लीडर्स होते थे वो उस तरीके से एक्ट करते थे जो शायद नहीं करना चाहिए था। बट ठीक है, आप भी इन्वॉल्व हो जाते हो और उसके बाद कई चीज़ें आपको यूथ डेज में, यंग डेज में बड़े अट्रैक्ट करती है। राइट। सो उस रास्ते भी चल दिया था कुछ दूर तक, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद महसूस हुआ कि वो रास्ता शायद मेरे लिए सही नहीं है, बिकॉज मेरे ऊपर जिम्मेवारियाँ हैं और भी कुछ करना है लाइफ में। सो वहाँ पे एक यू टर्न हुआ, और यू टर्न होने के बाद सबसे बड़ा कारण था कि मुझे नौकरी करनी थी, और नौकरी करनी थी और ऊपर वाले के कृपा से नौकरी मिल भी गई तुरंत। फिर नौकरी में चले गए और वहाँ से एक यू टर्न आया, फिर ये रास्ता चालू हुआ। तो एक स्टोरी बताओ, मतलब जो आपने और आपके मेट्स ने कॉलेज में क्रैक की। कई झगड़ों में शामिल रहे, कई लड़ाइयों में, झगड़ा तो नहीं कहेंगे उसको, वो लड़ाइयाँ होती थी। राइट। और वो लड़ाइयाँ होती थी, उसके अंदर कई तरह के, हर तरीके के लोग इन्वॉल्व रहते थे और आप भी इन्वॉल्व होते थे। राइट। सो काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, और मैंने कहा उसके अलावा एक नॉर्मल जो यूथ का बिहेवियर होता है वो सारा कुछ था। सो बाकी कुछ रिलेशनशिप वगैरह लाइफ कॉलेज टाइम में वो कुछ था ऐसा कुछ, या फिर आप हमारी तरह अभी मतलब जैसे भी है? मैंने आपको कहा कि एक नॉर्मल यूथ, तो नॉर्मल यूथ वो भी चीज़ें आती हैं, रिलेशनशिप या जो भी है। सो कई कहानियाँ अब ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उसको आज हम लोग यहाँ पे विराम दे दें तो बेहतर होगा। ठीक है। सो बिजनेस करने के कुछ की लेसन्स बताइए सर। की लेसन्स तो सबसे जो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। आपने अगर कोई लक्ष्य तय किया है तो उसको, उसके पीछे लगे रहे। उतार चढ़ाव आएंगे जीवन में, बट उस उतार चढ़ाव से आपके लक्ष्य जो है उससे आपको रास्ता नहीं भटकना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात कि जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, हमें कहना चाहिए, बताना चाहिए, आई मस्ट टेल यू कि one can divide the whole world and the functioning into two parts, pre-COVID and post-COVID. So pre-COVID दुनिया अलग थी, post-COVID दुनिया अलग है। शायद हम लोग अभी कोविड 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले निकले हैं, तो अभी हम लोग उस तरीके से उसको देख नहीं पा रहे। लेकिन आप 8 साल 10 साल के बाद जब इसका आप एक तरीके से इंट्रोस्पेक्शन होगा, जब इसके ऊपर आप चीज़ों को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे प्री कोविड और पोस्ट कोविड वर्ल्ड में काफ़ी बदलाव आ गया है। अब तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो भी लक्ष्य आपने लिया बिजनेस के अंदर या जो भी आप कर रहे हैं, उसके अंदर समय समय पे बदलाव होते रहना चाहिए। राइट। जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोर्स करेक्शन। 15 साल पहले जो चीज़ें रेलिवेंट थी व्हेन वी स्टार्टेड, आज बिल्कुल वो रेलिवेंट नहीं है। राइट, सब चेंज हो गया है, सारी चीज़ें चेंज हो गई। रादर 3 साल पहले जो चीज़ें रेलिवेंट थी आज भी वो रेलिवेंट नहीं, चाहे उसके अंदर बहुत सारे कोर्स करेक्शन हो गए। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज़ को आप पढ़ाई करें। हम हमेशा कहते हैं कि आज के दिन में या कभी भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन अपडेटेड। सो कीप रीडिंग। आज की दुनिया में तो ऐसे भी गूगल है आपके पास, या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। सो कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। दुनिया में कहाँ पे किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या बदलाव हो रहा है, डिफेंस के क्षेत्र में क्या बदलाव हो रहा है, या बाकी क्षेत्रों में क्या बदलाव, उससे क्या होगा कि आपको एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने में मदद मिलेगी। राइट। सो आप एक पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं, and also that will help you in course correction. So this is what I feel. I mean, it is not a rocket science. Let me also tell you. ऐसा कुछ नहीं है कि आप बड़ा कुछ अलग करते हैं, बड़ा कुछ डिफरेंट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक ही फिलॉसफी है, वो है कुछ भी हो, कम व्हाट में लगे रहो। ठीक है। आपको परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बने रहना पड़ेगा। If that one can do, I mean, this is anybody can move on this path. इस बीच में कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, अपने वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, मतलब उसके अलावा भी कुछ डिस्ट्रैक्शंस आते हैं लाइफ में। सो उन डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें अपने गोल को अचीव करने में? डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। आज के दिन में सोशल मीडिया आने के बाद काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, चूँकि हम उस एरा से हैं जहाँ सोशल मीडिया नहीं था। रादर उस समय तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बड़े नेसेंट स्टेज पे था व्हेन वी स्टार्टेड आवर प्रोफेशनल करियर। सो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, और the best thing is that if you really want to stay away from distraction is realign your
purpose, Right. keep realigning your purpose of life or whatever you are doing, right? Right. Still distractions will happen. You should know how to deal with it, because यहाँ हर कदम पे distraction है. आप बाहर निकलो, आपको भी पता है, you are Right. also a youth, so you know the kind of distraction आज के दिन में है. लोग बट parties ऐसा कर नहीं रहे किसी हैं। distraction से निकल के बहुत सारे लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, Right. right? हम्म। So it's all about you, right? Perfect. How strong you are mentally, psychologically to deal with such kind of distraction and keep focus On your goal. on your goal. परफेक्ट। और मैंने सुना है कि अभी अक्टूबर में आप एक बुक भी पब्लिश कर रहे हैं, हाँ। अपनी जो आपने अपनी स्टोरी आई थिंक जैसे भी है, तो उस बुक के बारे में कुछ बताइए, और आपके माइंड में कैसा है कि मैं एक बुक लिखता हूँ, और क्या इंस्पिरेशन है इस बुक की? देखिए, अभी जैसा मैंने आपको अभी पिछले सवाल के जवाब में मैंने कहा था आपसे कि आपको पढ़ते रहना चाहिए. पढ़ते रहेंगे, दुनिया के बारे में जानकारी लेते रहिए, दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे बदलाव हो रहे हैं, किस दिशा में चीज़ें बदल रही हैं या बढ़ रही हैं. तो इसी दौरान, इसी रिसर्च के दौरान हम लोगों ने महसूस किया कि हिंदुस्तान, इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग मार्केट है इनटू द फील्ड ऑफ लीगल सर्विसेज, राइट? So it is an emerging market, and why it is an emerging market, that is very important to know. Because आज के दिन में किसी भी मार्केट को ग्रो करने के लिए 2-3 चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट हैं उसके अंदर. एक तो आपके पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, Right. दूसरा उस तरीके के, उस क्वालिटी के रिसोर्सेज होने चाहिए Right. जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाए. अब हम आपसे चाहेंगे कि आप जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रांति जो हुई थी हिंदुस्तान के अंदर, जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1980s 1990s के दौरान, आप सोचें कि किस तरीके से हिंदुस्तान आज के दिन में पूरे विश्व में, दुनिया पे अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है. Right. आप विदेशों में जाएंगे तो लोग हिंदुस्तान को या तो ताजमहल देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर, या वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखते हैं. जैसे अभी चंद्रयान 3 ले लीजिए, अभी चंद्रयान 3 भी ले लीजिए. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, आईटी ने हिंदुस्तान को एक जगह दी है पूरे विश्व के पटल पे. उसी तरीके से आप अगर देखें लीगल सर्विसेज को, सो लीगल सर्विसेज के अंदर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास क्वालिटी रिसोर्सेज है, राइट? पिछले 10 साल के दौरान अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे क्वालिटी लॉ स्कूल्स खुले हैं, जो बड़े अच्छे लॉ स्कूल हैं, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के लॉ स्कूल हैं. Right. आज के जो हमारे लॉ ग्रेजुएट्स या LLM करके जो हमारे मास्टर डिग्री होल्डर जो लॉ से जो पास कर रहे हैं बच्चे, आप उनकी क्वालिटी और उनके डेप्थ को देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे. सो इंडिया इज एन इमर्जिंग मार्केट, बिकॉज अभी क्या है कि दुनिया के अंदर ग्लोबली कॉस्ट ऑफ लीगल सर्विसेज इज वेरी हाई. ग्लोबली इफ यू लुक एट USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ऑल दीज कंट्रीज, cost of legal services are very very high. Or with the advent of technologies like artificial intelligence, blockchain, cloud computing, and so many other things, now what is happening, now customer also has an access to the technology. I mean, he can also do, I mean, if suppose if really you want to write a agreement, prepare an agreement or something like that, you can do it with the help of artificial intelligence. Right, you give a command to artificial in any of the AI platform and they will write it for you. Right. With some common knowledge you can edit it and you can rewrite and you can use it for your own good. Right. So what is happening? So now this is going to create cost pressure for the global law firms. Right. Okay. Right. So now they have to, because see, let me tell you the kind of revenue they are generating. So they have to reduce or minimize their operational cost to meet these changing scenarios. Right? For that, the only option is India. So उन्हें इंडिया के ऊपर देखना पड़ेगा. क्यों देखना पड़ेगा? एक हमारे पास यूथ है. इंडिया की 60% population is young. It is youth. It is tech savvy. Right? Most of the population, I mean, in India are tech savvy, plus English speaking. Right? And with a good knowledge and understanding of law, international law, domestic law, Indian law, so with a quality good understanding of, I mean, India is growing towards maturing, I mean, right? So India जो है वो धीरे धीरे, so this is where, so during the course of our research we realized it, and then we did, and we found that India could emerge, or rather India is going to emerge as a global hub for legal services. And this book deals about that,
This Okay. we have named it as Advantage India. एडवांटेज सुनते हो. The name of the book is Advantage India. So with Advantage India, we have discussed about Indian market, global market, how India can play an important role into the global market. Okay. So that, I mean, with the help of technology, the kind of technology will be used, the kind of other things will be used. So those things are clearly, I mean, defined in this book. So this is what it is all about. Okay. So कब लॉन्च हो रही है बुक? ये किताब लॉन्च हो रही है हमारी होपफुली इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आपके दिन के जो काम है ना वो बड़े क्लियर होने चाहिए. योर डेज एजेंडा, राइट, it should be very clear. So first thing in the morning what I do when I wake up, so obviously after all my morning course I sit on my table and I plan my day. So every day morning I plan my day and I try to complete my day on that very day itself, all the agendas. And let me tell you, 90% of the days I am able to close my agenda. Sometimes 10 भी बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं रात के, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ वो दिन का एजेंडा पूरा हो जाए. ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज अगले दिन के बारे में पता नहीं होता है कौन सा क्रिटिकल एजेंडा कब कहाँ से कैसे चला आएगा और पूरे दिन को आपको वो डिरेल कर दे. राइट. सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड मोर ओवर आई विल ऑल्सो एडवाइज द यंगस्टर्स, दे मस्ट कीप अ नोटबुक विद देम. ठीक है, आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ डेज दे राइट ऑन देयर स्मार्टफोन एंड टेक अ नोट एंड एवरीथिंग. दैट इज़ गुड, I mean, some ways, but they must carry a notebook that helps you in writing down. And once you write down an agenda, it also goes in your mind. Right. So it is very important. So these are the few things which I am practicing, I am doing, and I have found a better result. एक जो घटना जैसा आपने पूछा कि जिसने आपके जीवन में एक काफ़ी बड़ा परिवर्तन लेकर के आया, तो हाँ, एक घटना मुझे याद आती है उस तरीके की कि जब मैं जॉब में था तो मुझे उस साल, एनुअल मीटिंग की बात है, उस साल मुझे बेस्ट मैनेजर का अवार्ड मिला था उस साल, और अवार्ड फंक्शन चल रहे थे. उस अवार्ड फंक्शन के दौरान मैंने महसूस किया कि कुछ हमारे जो सीनियर्स थे, मेरे सीनियर्स थे, जिन्होंने मुझे इंडक्शन किया था. देखिए, इमोशनल अटैचमेंट होता है कि ही वॉज माई फर्स्ट मैनेजर, और इन्होंने मुझे इंडक्शन दिया, कंपनी के अंदर बताया, उंगली पकड़ के सिखाया. सो he was treated roughly, right, during the meeting, maybe because of performance, maybe because of performance only. I mean, there might be some other issues. तो परफॉर्मेंस ही था. सो मैंने रियलाइज़ किया कि आप उम्र के एक पड़ाव में आने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट रहे. आप 25 साल, 30 साल, 35 साल काम करते हो, कई दफ़ा आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अप एंड डाउन भी होती है. तो अप में तो सभी आपके साथ रहते हैं, जब आप बेहतर करते हो पूरी दुनिया आपके साथ होती है, और जब आप थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हो या कई दफ़ा कुछ कारणवश आपकी परफॉर्मेंस शायद लोगों के अनुरूप नहीं होती है, तो द काइंड ऑफ बिहेवियर आई हैव सीन विच वाज गिवन टू हिम, दैट जेंटलमैन, आई डिड नॉट लाइक दैट. और वो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से बड़ा मतलब परेशान किया कि आज मैं यंग हूँ, आज मेरी उम्र आप कह सकते हो अराउंड 32 के आसपास है, और ऑब्वियसली मेरा भी एक उम्र होगा, एक ऐसा वक्त आएगा जो शायद हम भी इसको मेंटेन ना कर पाएँ इन चीज़ों को या कर सके. तो देन आई विल ऑल्सो बी ट्रीटेड लाइक दिस, एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड नॉट लाइक, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. आई स्टिल रिमेंबर, एंड आई कॉल्ड माई वाइफ. उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, राइट. सो मैंने वो नॉर्मल जो एसटीडी कॉल्स होते थे उस समय अपने कमरे से मैंने रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे होंगे, चूँकि पार्टी काफ़ी लेट नाइट तक चलती थी. आई कॉल्ड माई वाइफ एंड सेड आई एम रिज़ाइनिंग, आई एम लीविंग. तो शी आस्क्ड कि ऐसा, मतलब ऑब्वियसली आप अवार्ड लेने गए हो, एंड एवरीवन न्यू कि यू आर ए परफॉर्मर, यू हैव परफॉर्म्ड वेल. So what happened all of a sudden you are saying that I am leaving? I said बाकी बातें बाद में करेंगे, but अब हम नहीं कर पाएंगे. And that was the decision. I came back, and I remember after a few days I resigned. I roam around on the street for 6 months. 6 महीने मेरे पास
ऑब्वियसली एक आइडिया था एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, बट ये प्लान नहीं था कि अभी तुरंत शुरू करेंगे। तो कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था उन दिनों, कुछ खास आइडियाज़ भी नहीं थे, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना भी नहीं था, इतने इंफॉर्मेशन इतने नॉलेज अबंडेंस में अवेलेबल भी नहीं होते थे। So I remember I roamed around on the street for 6 months. I gathered information, I gathered data, what to do. I interacted with some of my seniors, colleagues, and then we decided to enter into services sector. And the primary reason of entering into the service sector was that there were 3 sectors at that point in time. Either you go to manufacturing, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग करें, या आप ट्रेडिंग करें, या आप सर्विसेज सेक्टर में जाएं। सो आप जब मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज को जब एनालाइज करते हैं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग जो है वो कैश इंटेंसिव काम है, राइट। आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को लगाने के लिए आपको काफ़ी कैश उसके अंदर इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। ट्रेडिंग में भी यही बात है, बिना कैश का यू कांट डू ट्रेडिंग, एंड ऑब्वियसली वी वर शॉर्ट ऑफ कैश। थैंकफुली वी डिसाइडेड that we will go for services sector, and we entered into services sector after 6 months of research and everything, and that is how we started. So that was the a major turning point, जो कि शायद वो 2 साल डिले भी हो सकता था शुरुआत होने में, लेकिन उस समय इमीडिएटली शुरू हो गया। एक पैरा है कि हर सक्सेसफुल आदमी पीछे एक औरत का हाथ होता है। सो आपकी वाइफ ने क्या रोल प्ले किया आपकी जर्नी में? नहीं, वो तो सी बीइंग अ लाइफ पार्टनर, शी ऑलवेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज लाइफ कभी भी एक जैसी रहती नहीं है। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स, एंड पर्टिकुलरली इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, तो यहाँ तो बिल्कुल ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती है। 2 चीज़ें हैं, एक तो ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव, दूसरे आपके परिवार, आपके बच्चे। सो आप अपने परिवार और बच्चों को बिल्कुल समय नहीं दे पाते हैं, बिकॉज आपके पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चा होता है जो कि आपका बिजनेस होता है, जो कि आपकी एंटरप्राइज होती है। सो आपको सबसे ज़्यादा समय उसको देना पड़ता है, और उसमें अगर कोई सफ़र करता है तो वो आपकी फैमिली और बच्चे, राइट। सो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे बच्चे कैसे बड़े हो गए ये मुझे नहीं पता चला, और इसमें क्रेडिट मैं देता हूँ मेरी वाइफ का और मेरे माता पिताजी का, क्योंकि मेरे पिताजी रिटायर्ड थे उस समय। सो मेरे बच्चों का जो भी मेडिकल अटेंशन होता था वो मेरे पिताजी देते थे, घरेलू दवाइयाँ, घरेलू उपचार मेरी माताजी करती थी, और मेरी वाइफ मेरे बच्चों और मेरे माता पिताजी का केयर करती थी। और एक चीज़ उन्होंने किया कि मुझे बिल्कुल छोड़ दिया घर के जिम्मेदारियों से, मैं बिल्कुल दूर था, मैं घर में इसके सिवा कि बस आप जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठाने के सिवा और कोई जिम्मेदारियाँ, सो इससे ज़्यादा और अब तो आई थिंक आपके पास थोड़ा टाइम होता होगा घर में देने के लिए। शायद अभी भी नहीं उतना समय होता है। आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं अपने जीवन में, समय अगर आप रियली सीरियस हैं और शिद्दत से लगे हैं किसी काम के पीछे, तो कुछ ना कुछ तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सो 2 चीज़ें सैक्रिफाइस होती हैं, एक सबसे पहला तो आपका हेल्थ, दूसरा आपकी फैमिली, राइट। आपको जीवन में अगर आगे बढ़ने की तमन्ना है, चाहत है, तो कहीं ना कहीं बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं आप इग्नोर करते हैं, टाइम, रेस्ट, भाग दौड़, स्ट्रेस, राइट। सो दैट एक्चुअली इम्पैक्ट्स योर हेल्थ, राइट। और दूसरी चीज़ है ऑफ कोर्स फैमिली। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आप कहीं ना कहीं जिसको आप समझते हैं कि ये 2 सैक्रिफाइस है। जब आपने वो डिसीज़न लिया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और इसके बाद मुझे काम नहीं करना, 6 महीने आपने बताया कि आपने काम ही नहीं किया, आपने सिर्फ डिस्कवर किया और एक्सपीरियंस गेन किया। आज के टाइम पे देखा जाए, अगर आप कोई अपनी वाइफ को बोले ना कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं 6 महीने काम नहीं करूँगा, तो आई थिंक वाइफ छोड़ जाएगी। तो आप उस टाइम आप किसको कैसे वो करते हो कि अभी के टाइम के हिसाब से और आज के पुराने टाइम के हिसाब से, कुछ आप बताइए आपके हिसाब से। नहीं, अगर आपको आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके वाइफ का सपोर्ट ना मिले, एंड ऑफ कोर्स बच्चों का भी, तो बड़ा मुश्किल है इस सफ़र को जारी रखना। तो शी हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव, शी वॉज सपोर्टिव, एंड शी हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव। So probably that is why today I am sitting in front of you and having a word. So हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जिसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है। That's it. So what are your hobbies? I mean reading and gardening.
What are your favorite Whenever I pastimes? find time, so I go for either gardening or reading. So these are my hobbies. Okay, what your favorite pastime? I mean, favorite pastime is sometimes watching cricket, Okay. television, आपके कोई रोल मॉडल? role model in business. किसी में बता सकते हैं आप? Acha. Azim Premji, I like his life, the way he has transformed the organization, and not only organization, but the way he has also contributed for the country. हम्म, Right. So Okay, कोई Azim Premji from Wipro is my role model. perfect. कोई favorite कार आपकी? Favorite car, Mercedes, you can say. What are your fantasies? I mean, fantasies are roaming around the globe and spending time on the beaches. Perfect. So कोई ऐसे बिजनेस टाइकून जिसके साथ आप कॉफी पे जाना चाहते हो, कोई नेशनल कोई इंटरनेशनल? I mean, अगर नेशनल की बात करेंगे तो वन एंड ओनली मिस्टर अजीम प्रेम जी फ्रॉम विप्रो, जिनके Okay. साथ एक इवनिंग हम बिताना चाहेंगे और कुछ सीखना चाहेंगे, कुछ समझना चाहेंगे, बिकॉज द वे ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर ऑल्सो फॉर द कंट्री, दैट इज़ अनइमेजिनेबल, Right. अनप्रेसिडेंटेड आई कैन टेल यू. सो एंड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल, ऑफ कोर्स मिस्टर जैक मा. नाइस. और सबसे सुकून देने वाली जगह? आई मीन जंगल सफारी. नाइस. कोई इंटरनेशनल ट्रिप लास्ट आपकी? International trip, I visited recently. I visited Dubai and Singapore. और अगर नेक्स्ट ट्रिप बने तो आप कहाँ जाएंगे, थाईलैंड या एम्स्टरडेम? शायद दोनों में से कोई भी जगह नहीं. आई वुड लव टू ट्रैवल टू USA. ओके. कोई ऐसी चीज़ आपको यूएस में पसंद हो? आई मीन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. ओके. सो whom do you love the most, your wife or your kids? Obviously wife. I mean she came to life and she was the first person who came to life. Perfect. So what are your current life mission? I mean life mission is to make Inductus one of the largest consulting firm in the country. So that Perfect. is my life mission. Okay, what are your end goals? मतलब एक end point आपने सोचा हो कि इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है या फिर ऐसा कुछ? I mean making Inductus 1,000 crore company, Nice. 1,000 crore entity. परफेक्ट. एनी एडवाइस टू पीपल डूइंग स्टार्टअप्स जो आज के टाइम पे लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, लाइफ चेंजिंग एडवाइस उनके लिए? बिल्कुल. आज के कॉन्टेक्स्ट में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले जो बिजनेसेस थे वो मोस्टली कह सकते हैं आपके वो ड्रिवन बाय लक्ष्मी थे. लक्ष्मी के थ्रू ही ड्राइव कर पाते थे आप, बिकॉज किसी बिजनेस को करने के लिए आपके पास कैपिटल होना ज़रूरी होता था. राइट. और विद द कैपिटल ओनली आप कैपिटल फर्दर क्रिएट कर पाते हैं. लेकिन आज उस सोच में थोड़ी मेरे हिसाब से थोड़ी बदलाव आई है और आनी भी चाहिए. आज जो है माँ लक्ष्मी का जो रास्ता है वो माँ सरस्वती के दरवाजे से होके गुजरता है. फॉर एन एग्जांपल? आई मीन यू नीड टू हैव नॉलेज. ओके. सो माँ सरस्वती के रास्ते से कहने का मेरा मतलब है कि आप नॉलेज के थ्रू ही लक्ष्मी को पा सकते हैं या लक्ष्मी गेन कर सकते हैं. ओके. सो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड. नॉलेज इज अ की. नॉलेज इज़ द की. ओके. एनी मोटिवेशन और गाइडेंस टू आवर ऑडियंस जो लोग देख रहे हैं हमारे को, आज का जो यंगस्टर है, जो यूथ है, उनके लिए जो गलतियां शायद आपने करी या फिर जो गलतियां लोग बिजनेस में करते हैं, ताकि वो ना दोहराएं और एक मोटिवेशन बन जाए ताकि आपके जैसे एक बड़ा वेंचर स्टार्ट कर सके, बना सके? I mean, सबसे जो इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है आज के दिन में वो है पेशेंस. यू नीड टू बी पेशेंट, और आपको पेशेंट होने के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी रखना चाहिए. सो मैंने पहले भी कहा है कि धैर्य, और दूसरी चीज़ है किसी भी लक्ष्य को, जो भी लक्ष्य आप चुनो उसके पीछे लगे रहो. ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 महीने में सफलता मिले, 1 साल में सफलता मिले, लेकिन सफलता मिलेगी ज़रूर अगर आप लगे रहेंगे उसके पीछे. ये मैंने अपने जीवन से सीखा है, जीवन के अनुभव से सीखा है, और जो आने वाली जनरेशन है हम उनके साथ यही शेयर करना चाहें. सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने अपने इंपॉर्टेंट टाइम में से थोड़ा टाइम दिया, और थोड़ा नहीं बहुत सारा टाइम दे दिया, और एक मोटिवेशन मुझे भी मिली आपसे कि हाँ, मुझे जो मैं भी कर रहा हूँ मुझे करते रहना चाहिए. मुझे बहुत सारे बैकफॉल्स आते हैं, बट आई विल मेक श्योर कि आपसे जो मैंने आज गाइडेंस ली है वो आगे यूज़ करूँ फ्यूचर में. और अब स्पीचलेस, पहली बात कि आपने जो इतना टाइम दिया और समझाया ना मुझे, हमारी इस पूरी टीम को समझाया और ऑडियंस को समझाया, इट इज़ वेरी आउट ऑफ द बॉक्स. और थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम. Thank you very much for this opportunity, and I could see a spark in you and your teammates, थैंक यू. right?
and I'm sure you are also going to rewrite, right? Our story. Yes. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir.